वेलकम टू इंटरसॉफ्ट इंस्टीट्यूट। तो डेमो क्लास ऑफ द सीगेट फर्मवेयर। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस। अलग अलग स्टोरेज डिवाइस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्लाउड स्टोरेज। जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, कंप्यूटर्स, ये जो भी स्टोरेज आता है वो यहाँ पर अलग अलग स्टोरेज है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में। नॉर्मली वी विल सी अबाउट द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोर कैसा होता है डाटा, वो हमको समझना है। एसएसडी भी अभी नहीं, खाली हार्ड डिस्क के बारे में। एसएसडी भी बाद में देखेंगे, सिर्फ हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो कैसा होता है वो देख सकते हैं। अच्छा, मिक्सिंग करेंगे, वी विल डू इन मिक्सिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक, द डाटा स्टोर इन द मैग्नेट. Data storage in the magnetic storage device. Some data storage in optical storage like a CD-ROM and SSD, like that they are storing as a flash memory. So we are going on the magnetic storage. Magnetic storage has the different process how data store. These are the magnetic strip, super disk, diskless. These are the magnetic storage. How the data store in the magnetic? You can see this is your track and this is your one byte, one bits, binary digit, 1 byte, sorry. 8 bit is equal to 1 bytes. In our hard disk, there is a 2 head. One is for read and one for write. Write work. राइट का काम क्या है, आपके प्लेटर को मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ साउथ करना है। नॉर्थ साउथ मीन्स क्या, 0 और 1। ओके, 0 और 1 से एक ए कैरेक्टर को स्टोर करेगा। एंड रीड मीन्स इट विल रीड द डाटा फ्रॉम हियर। तो रीड एंड राइट, 2 process are there. So in a head there is an, in between head there is a 2 head, that is a read and write. 2 conditions are there. Okay, so these are the 2 storage, read and write. So hard disk store the data form of magnetic pulse that represent as a north and south. It store as a north and south. To draw correct. Okay, north and south, it is storing like north and south. So magnetic fields are stored with the help of north and south. If any magnetic field not record, अगर कोई magnetic field बराबर record नहीं हो रहा है तो what is the problem? Bad sectors हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। ज्यादातर प्रॉब्लम बैड सेक्टर्स के क्यों आते हैं? बिकॉज देयर इज अ नॉट स्टोरेज द डाटा। स्टोरेज नहीं, ये ड्राइंग 1 minute। So normally storage device used to store data permanently. Data may be any character, word, letter, image, video, audio, etc. and maybe in the any language. All electronic device only understand the binary number that is consists 0 and 1. तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका क्या जानता है? 0 और 1. 0 means off, on, no, yes. So any 1 bytes is equal to 8 bits. It will store like this. If we type A in a computer, and the computer don't understand these things. He understand the binary, which is like this. This he understand. Because A is for us and it used for the ASCII programmer. ASCII, you know ASCII programming. For English, it is using ASCII. And for English France, that is different language. So English language use ASCII, American Standard Code for Information. हाँ? Hello. Yeah, I have moved him. So these are the language, English language, ASCII, American Standard Code for Information Interchange. So for English, any character what we save in the hard disk or RAM or memory card or anything, it will storing in this type of coding for English medium. And for France, Russian, any other language, there is different language. So this is your normally language. So there are different type of number system. You remember number system. See, we have to go in a data recovery. So we have to understand very deeply. So there are different number system we are using in the life, that is a 0, 0 onward, 0, 1, 2, 3, 4, 9.
then we are using 10 to 19, then 20 to 29, like that. It is called decimal. One more system is there, that is an octal. Octal means it has only 7 digit, 7 unit up to 7, then again 10 to 17, then 20 to 27, like that. And binary only have a 2 digit, that is 0 or 1. दो ही word है, 0 or 1. 0 1 1 1 plus 1 is equal to 10, 10 plus 1 11, 11 plus 1 means 100, like that it calculate. ये सब नंबर सिस्टम से हमारा कंप्यूटर पे स्टोर होता है डाटा. ओके, तो हाउ, तो यहाँ पर जो एक मशीन लैंग्वेज आती है, जैसे ये आस्की कैरेक्टर है, आस्की लैंग्वेज, सॉरी आस्की लैंग्वेज है, जैसे ए लिख रहे हैं तो ए कंप्यूटर में स्टोर होता है इस तरह, और स्मॉल ए इस तरह होगा 01101. उसका एक्टल यूनिट ये है, हेक्सा 61 है, इसका हेक्सा 41 है. तो वेन एवर वी टाइप एनी कैरेक्टर in a notepad, I will go here, I will open one file, that is new. I will open one notepad file. I will open one notepad file. I will type hello like this. How many character it is? How many character it is? 6. Hello Z. It has been 6, 1 2 3 4 5 6 and 7, total 7 character. Now I save. How it store in the hard disk? I am typing its type hello.txt, like that. Any we can save in the desktop. Okay, now we will open the desktop file. Same, we go desktop and we will see the hello, and we open with an hxd editor. So how it store? It store like this. See, कोई का क्लियर करो ना, किसने बनाया. See, what is that? H का क्या कैरेक्टर आया? 65. Z का 7A. डिफरेंट है. ओके, तो दिस इज योर कैरेक्टर. तो जो भी हम सेव करते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, एक मशीन लैंग्वेज में वो सेव करता है. machine language, this is a machine language, it's save in the machine language, that is an important. Next, so these are stored in the ASCII language. See here, you can see A, Z means what, different there is written. A का मतलब क्या है, Z का मतलब क्या है, there is different. Okay, तो ये सब डिफरेंट लैंग्वेज है, ये ASCII लैंग्वेज है. इट विल बी अप टू 255 कैरेक्टर. So the digit will be from 000 to 111, means 0 to 255, any character will be there. So it is a number system. Okay, number system. Next, now how the data store in the platter. प्लेटर में डाटा स्टोर कैसा होता है, तो प्लेटर्स आर डिवाइडेड विथ, कोई और नहीं करा, प्लेटर आर डिवाइडेड विथ ट्रैक. तो प्लेटर बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या करा, ट्रैक. तो ऐसा ट्रैक को डिवाइड करते हैं प्लेटर्स को. तो प्लेटर्स को डिवाइड कैसा करा, ट्रैक से करा. क्योंकि एक प्लेटर में अगर मैं पूरा डाटा डालूंगा तो उसको एड्रेस नहीं दे पाऊंगा, तो एड्रेस देने के लिए उन्होंने क्या डिवाइड करा, ट्रैक एंड सेक्टर पे डिवाइड करा. ये सब ऐसे रहा सॉल्यूशंस होगा. ये प्रॉब्लम के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या क्या होता है. ये ट्रैक्स को डिवाइड करा है और ट्रैक्स को और सेक्टर को ऐसा डिवाइड करा जिसको एक एक पोर्शंस बनाया. ये ड्राइंग में मैंने बड़ा बनाया, लेकिन ये जो ट्रैक दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 16,000 20,000 24,000 ऐसे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे. और सेक्टर भी 64 45, बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे. ये तो ड्राइंग के लिए सिर्फ बड़ा ड्रॉ करा है. ठीक है, तो ये आपका एक सेक्टर दिख रहा है इतना, उसको और जूम करेंगे, उसको और जूम करेंगे, उसको और जूम करेंगे, तो इस तरह आएगा. ओके, तो ये नेटवर्क का है हमारा. तो ये जो भी है उसको लिखो ने, दस नेटवर्क इज ओके चैट. तो दिस इज सेक्टर्स आर लाइक दिस. तो ये जो एक एक पोर्शंस है उसको बड़ा करके देखते हैं तो ऐसा एक एक बाइट मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है इसके अंदर.
ठीक है, अब ये सबको एक एड्रेस दिया हो जाता है, ये सबको एक एड्रेस LBA 02644, दिस आर द एड्रेस ऑफ द सेक्टर्स। तो हर सेक्टर्स को एक एड्रेस दिया गया है, एवरी सेक्टर्स है वन एड्रेस। ओके, there is two type of address, one is an LBA, one is a CHS, cylinder number, head number and sector number, like that address is given. Cylinder head and sector, cylinder head sector 3 4 5 6 7 8, like that numbers are given. And one is an LBA, तो LBA 0264 and CHS 0012 onward ऐसा नंबर दिया। यही जो सेक्टर्स है उसको इस तरह डिवाइड करेंगे, तो जो पहला जीरो पोर्शन है दैट इज एन MBR, दैट इसको क्या बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। जब भी हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, वेन एवर द सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम, नहीं आ रहा अपना, वेन एवर द सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम, पार्टीशन नहीं दिखा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR करप्टेड होगा। MBR में क्या रिकॉर्ड होता है, C ड्राइव कहां से कहां है, D ड्राइव कहां से कहां है, उसकी डिटेल कहां में होती है, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। उसके बाद कुछ GPT के इंफॉर्मेशन होती है, और पहला C ड्राइव हमारा 2048 से स्टार्ट होगा, C ड्राइव। D ड्राइव, C ड्राइव कितना बड़ा है वहां से D ड्राइव स्टार्ट होगा, E ड्राइव होगा, इस तरह पार्टीशन होंगे। तो जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इसके रिलेटेड आती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सातवां सेक्टर खराब हो गया, वहां पर डाटा स्टोर नहीं होता है, तो क्या प्रॉब्लम है, वो बैड सेक्टर्स हो जाते हैं, बैड सेक्टर्स हो जाएंगे। इनको बोलो ना ऑडियो सेटअप करो लॉग आउट करके, सॉरी। तो ये सातवां बैड सेक्टर्स है, तो ये क्या करता है, ये LBA एड्रेस देखो 6 है, 6 के बाद इसको स्किप कर दिया और 7 8 9 है, तो ये डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट हमारे एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि ये सेक्टर हमारा डिफेक्ट है। ये तो आपके पास 33,000 है, लेकिन कितने सेक्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, उसमें कितने सारे बैड सेक्टर्स होंगे। तो जो हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम्स आती है वो ज्यादातर बैड सेक्टर्स के लिए आती है। उस बैड सेक्टर्स को या तो हिडन करो, या उसको स्किप करो, या उसको इस डाटा को छोड़ के बाकी का डाटा ले लो, और फिर रिफर्बिश में उसको हिडन कर दो, कन्वर्ट कर दो, ये सब कर सकते हैं। बोलो। हेलो, हाँ ठीक है, तो ये सब हम इसमें काम कर सकते हैं, तो ये सब हम इसको टास्क कर सकते हैं। yeah. तो दीज आर द ट्रैक एंड सेक्टर, सॉरी। तो ये हमारा जो भी पार्टीशन होता है 0 to 32, यहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। तो पहला पोर्शन है, अगर आपका सेक्टर एक्सेस होगा तो डाटा रिकवरी होगी। अगर ये सेक्टर एक्सेस नहीं है, हेड डैमेज है या फॉर्मवेयर करप्शन है, तो फिर आपको हेड बदलना पड़ेगा या फॉर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज करना पड़ेगा। सर म्यूट कर दो, वीवो म्यूट कर दो, आई एम म्यूटिंग यू, वीवो आपका आवाज आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हुआ नॉर्मली, तो ये नॉर्मली आपका क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सेक्टर एक्सेस हुआ तो। लेकिन अगर सेक्टर एक्सेस नहीं आता, क्यों नहीं आता वो भी मैं आपको बताता हूँ, व्हाई दिस प्रॉब्लम्स कम। तो दिस आर द लॉजिकल रिकवरी यू कैन डू, बट रिमेंबर दिस एड्रेस, ये एड्रेस को याद रखना, ये एड्रेस का ही ज्यादातर सीगेट में प्रॉब्लम्स आती है, जिसका डाटा रिकवरी करना पड़ता है। फॉर्मवेयर रिपेयर में ये सब प्रॉब्लम्स हमको करना पड़ता है। और ये जो टेबल्स होते हैं, ये एक ट्रांसलेटर टेबल होता है, और उस ट्रांसलेटर की वजह से अगर यहाँ बैड सेक्टर आया तो उसके बाकी का डाटा नहीं आ रहा है, या टोटली बिजी दिखा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स इस रिलेटेड फॉर्मवेयर में आते हैं। ठीक है, आपको पता है सेक्टर क्या है, सिलेंडर क्या है, ट्रैक क्या है, हर एक सेक्टर में एक एक अपना अपना डाटा होता है, और उसका एड्रेसिंग होता है, गैप होता है, साइक्रोनाइज होता है, जो रीड राइट हेड एक एक सेक्टर को रीड करता है। अब पहले सेक्टर हमारा ये है, खाली सेक्टर में डाटा है, वो सेक्टर नंबर क्या है, साइक्रोनाइज मार्क, डीप, AGP, ये सब होता है इसके आगे पीछे। तो 512 या 20 या 404 के भी या 512 का सेक्टर्स होगा, उसके आगे पीछे फिलअप होगा। अभी जो नई हार्ड डिस्क आती है वो क्या आती है, 4K। पहले 512 आती थी, अभी क्या आ रही है, 4K सेक्टर्स। तो पहले 512, 512, 8 मिला के एक 4K बनता था, लेकिन अभी नई जो हार्ड डिस्क आ रही है वो सब 4K एक्सेस आती है।
और इस 4K का एड्रेस यहाँ लिखा होता है, ये कौन सा सेक्टर नंबर है, उसका गैप, वो सब लिख के होती है। ठीक है। दूसरा एक हार्ड डिस्क में होता है बैड सेक्टर्स। तो कितने सेक्टर्स हमारे खराब हो जाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड नहीं करता, उसको बोलते हैं बैड सेक्टर्स। पी लिस्ट, जी लिस्ट, एनर्जी लिस्ट, अल्टर लिस्ट, सब सीगेट में बैड सेक्टर्स आते हैं। तो ये बैड सेक्टर्स का ज्यादातर रेशियो रहता है, हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्शन में नहीं आती है। आईओ एरर है, नॉट इनिशियलाइजर, ये सब एरर्स भी आती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लस्टर है, सिलेंडर ट्रैक है, कितने हेड हो, फिजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। देखो ये एड्रेस टेबल होता है हमारा CHS और LBA। तो CHS LBA का एड्रेस कैसा हम ऑब्जर्व करते हैं, सिलेंडर हेड सेक्टर, उसका एक एड्रेस, दो एड्रेस। ये अभी थोड़ा फास्ट में जा रहा हूँ इसलिए समझ में कम आएगा, लेकिन जब अब कल से क्लास चलेगी उसको एक एक चीज समझानी है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो टोटल सिलेंडर कितनी, इतनी छोटी हार्ड डिस्क में भी सिलेंडर कितने हैं, 16,383। हेड कितने हैं, 16 हेड, मतलब 16 नहीं होंगे, डिवाइड बाई 4 होंगे, मतलब 2 प्लेटर और 4 हेड होंगे। ओके। सेक्टर 63, 500 GB टोटल LBA। टोटल सेक्टर कितने हैं, इतने सब, एक इतनी हार्ड डिस्क, इतनी हार्ड डिस्क में इतने सेक्टर्स है। आप इसकी साइज देख सकते हैं, 500 GB की हार्ड डिस्क है, उसमें टोटल सेक्टर कितने हैं, टोटल हेड कितने हैं, सेक्टर्स क्या है, सिलेंडर क्या है, उसके उसकी साइज है। ये जैसे एक एग्जाम्पल बताया आपको। ठीक है, उसका टेबल होगा, और जोन बिट रिकॉर्डिंग है, ये सब नॉर्मल है। ठीक है। MBR जब ओपन करेंगे, मास्टर बूट रिकॉर्ड, अगर हेक्सा में MBR को ओपन करते हैं तो इसके पहला 2 और छेल्ले 2 अक्षर हम देखते हैं। अगर MBR में एरर नहीं है तो आपका पार्टीशन दिखाएगा, अगर MBR करप्टेड हो जाता है तो आपका पार्टीशन नहीं दिखाएगा या बूट सेक्टर नहीं दिखाएगा। तो इसके पहले की 3 लाइन और छेल्ली 2 लाइन हम देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है मेरी MBR फाइल करप्टेड नहीं है, ओके, डाटा दिखा रहा है, और बूट सेक्टर में खराबी नहीं है, वो भी डाटा दिखा रहा है। ये दोनों चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मास्टर बूट रिकॉर्ड है, MFT या MTR। नॉर्मली अब हार्ड डिस्क में फर्मवेयर क्या चीज होती है, जैसे लैपटॉप मदरबोर्ड में बायोस है, ज्यादातर सब यूजर्स जो भी काम करते हैं वो लैपटॉप में होंगे। तो लैपटॉप में एक बायोस है, बायोस आईसी है, उसका काम क्या है, फर्मवेयर। उसके बाद थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, IOIC में बायोस डाल दिया, फिर एनक्रिप्शन डाल दिया, बहुत सब एड ऑन होता है। इसी तरह लैपटॉप मदरबोर्ड में भी बायोस में बहुत सब चेंजेस करने लगे, लॉक डाल दिया कि, ये सब चीज ऑप्शन डालते गए। तो ये एक हमारा फर्मवेयर है। तो फर्मवेयर क्या है, वो है। ठीक है। तो फर्मवेयर क्या है, हार्ड डिस्क फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर माइक्रोकोड, एक फाइल है, अलग अलग फाइल्स रखी है, डाटा मॉड्यूल, मैनेजमेंट मॉड्यूल, और वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करा हुआ है। जैसे हेड, कितने हेड है, कितने प्लेटर है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड डिस्क का मॉडल नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, पी लिस्ट कितने कितने बैट सेक्टर है उसका रिकॉर्ड करेगा इसमें, जी लिस्ट, स्मार्ट, ट्रांसलेटर, ये सब टेबल होंगे फर्मवेयर में। फर्मवेयर दो टाइप के हैं, एक तो हमारा रोम में है, पार्ट 1 हमारा PCB है, रोम मतलब ये PCB आपकी, PCB के अंदर थोड़ा डाटा है। ओके, PCB के अंदर थोड़ा डाटा है फर्मवेयर रिपेयर, और प्लेटर के आउटर साइड पे थोड़ा और डाटा है, यहाँ ज्यादा डाटा होगा, यहाँ कम होगा। मोटर को घुमाना, हेड को उसकी जगह पे जाके रीड करना, उतना फंक्शन हमारा पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 हमारा प्लेटर में है। तो ये हमारा जो पार्ट 1 मेन इंपॉर्टेंट है। अगर रोम साइड, अगर नॉर्मली क्या करते हैं लोग, PCB स्वैप कर डालते हैं, डाटा नहीं चलता, क्योंकि उसका ओरिजिनल रोम चाहिए। सीगेट का अगर फाइल खुआ गई, रोम फाइल खुआ गई या PCB खुआ गई तो भी डाटा नहीं आ सकेगा। WD में PCB खुआ गई तो हम कुछ अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका बैकअप प्लेटर में होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसका रोम चिप है सीगेट में। अगर रोम चिप खराब हो गई या बिगड़ गई या जल गई तो डाटा बहुत कम चांस है। और जब भी आप PCB स्वैप कर रहे हैं तो भी आपको रोम स्वैप करना पड़ता है या रोम राइट करना पड़ता है। तो ये रोम इसके साथ मैच होती है। दूसरा हमारा फिर सर्विस एरिया है, जिसको प्लेटर बोलते हैं। तो प्लेटर में भी हमारा ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो मोटर को स्पिन करना, हेड को मूवमेंट करना, ये सब डिटेल यहाँ है, बाकी की डिटेल वो यहाँ से लेता है। और प्लेटर में भी अगर 3 प्लेटर है तो खाली 0 और 1 हेड में ही हमारा सर्विस एरिया होगा, ये 2 में डाटा नहीं होगा। तो जो भी हमारा प्लेटर है, तो प्लेटर का ये हमारा सर्विस एरिया है, उसको सर्विस एरिया बोलते हैं। और यहाँ से हमारा जोन है, मतलब यूजर एरिया है। यूजर्स मतलब हमारा जो डाटा इंफॉर्मेशन रहता है वो यहाँ से यहाँ तक रहता है। और यहाँ जो बाहर की साइड पे है वो नेगेटिव सिलेंडर है, जिसको -1 -2 से -256 समझते हैं। ये हमारा नेगेटिव सिलेंडर है। ठीक है।
तो ये हमारा नेगेटिव सिलेंडर है। नेक्स्ट, तो ये हमारा सर्विस एरिया। तो ये सर्विस एरिया कहाँ रहता है, वो एक चीज है। नेक्स्ट, अब हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। अभी जैसे हमने सीगेट की हार्ड डिस्क देखी, अब सीगेट में हार्ड डिस्क अलग अलग जात की प्रॉब्लम्स आती है। कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है, देखो सीगेट की हार्ड डिस्क में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, सभी ने ये हार्ड डिस्क देखी होगी। डिवाइस मैनेजर में क्या दिखा रहा है, 3.86 या 128 GB। जब भी मैं डिवाइस मैनेजर में लगाता हूँ तो ये भी एरर आती है। हाँ, ये भी एरर आती है, आईओ एरर आती है। या क्या दिखाता है, 3.86। देखो डिवाइस मैनेजर में जब भी हम माई कंप्यूटर में जाके चालू कंप्यूटर में लगाओ डिवाइस मैनेजर, अभी सब ज्यादातर हार्ड डिस्क में प्लग एंड प्ले आने लगी। प्लग एंड प्ले मतलब ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क को पावर दो। अगर तुम्हारा बायोस में प्लग एंड प्ले है तो ऑटोमेटिक लगाओ। तो जैसा हम डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाते हैं इस तरह डिवाइस मैनेजर में, तो डिवाइस मैनेजर में ये एरर आती है, अनअलोकेटेड और 3.86। ज्यादातर कस्टमर्स की हार्ड डिस्क ऐसी होती है 3.86। या नई हार्ड डिस्क जो एलएम रोसवुड आती है उसमें यह एरर आती है। देखो गौर से देखो, यहाँ पर दिखा है आईओ एरर, हाँ, इनपुट आउटपुट एरर, या नॉट एक्सेसिबल आईओ एरर, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आएगा। ये ज्यादातर आपका ये 3 प्रॉब्लम ज्यादा आएंगे। और अभी नई हार्ड डिस्क में और भी कुछ प्रॉब्लम आई है, जैसे एलएम पार्शियल और तो ये आती है बैकअप, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। कुछ डाटा दिखाएगा, उसके बाद के नीचे के सब डाटा अब नहीं दिखाएगा, उसको बोलते हैं पार्शियल एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है। दूसरा भी प्रॉब्लम आते हैं, ड्राइव नॉट इनिशियलाइज, मॉडल नंबर नहीं दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। पार्टिकुलर हेड, 4 हेड है उसमें से एक हेड खराब है, हमको 3 हेड का डाटा निकालना हो तो हार्ड डिस्क कंटिन्यूस बिजी है, डिटेक्शन में नहीं आ रही है, स्लो रीडिंग है, हार्ड डिस्क बहुत धीरे चल रही है, बैड जोन है, लॉक है, डायग्नोस बैड सेक्टर है, ये सब प्रॉब्लम हमारे फर्मवेयर के इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे जो हार्ड डिस्क में हम लोग जो इनकम सोर्स है डाटा रिकवरी का, वो ये सब प्रॉब्लम है, आईओ एरर, नॉट इनिशियलाइज, हेड डैमेज। हेड डैमेज जरा फिजिकल में जाएगा, लेकिन ये सब हम फर्मवेयर से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल है, F3 है या MRT है, मैं टूल भी बताता हूँ कौन से टूल यूज करते हैं हम लोग, वो टूल आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये रिपेयरिंग का करते हैं। अगर डाटा इंपॉर्टेंट है तो, इफ डाटा इज नॉट इंपॉर्टेंट देन नो नीड ऑफ दिस थिंग्स, खाली रिपेयर करने के लिए इतना बड़ा नहीं कहते। तो दिस इज अ डाटा रिकवरी प्रोसेस। Data recovery, there is an, you can do it 3.86, 128 GB error, some data shown, some not shown, IO error, drive not initialized. These are the common problem of the hard disk. Okay, सर yeah, tell me. ये 3.86 जो है ना, वो इसमें फर्मवेयर प्रॉब्लम आती है, कल ये वीक हेड और हेडर प्रॉब्लम सो भी ये 3.86 GB दिखाते हैं। देखो 3.86, there is 2 type of problems. It is saying a fake readiness. Okay. This is meaning what is fake readiness. Fake readiness means it showing a default values of the ROM. Okay. It cannot access the service area. Okay. Now you have to see the symptoms. It is an head damage or maybe firmware corruption or maybe ROM problem. 3 problems are there normally. Okay, now sir. you have to see the symptoms. When I give the power, it making clicking voice, tick, tick, Okay. tick, tick, 3 time, 5 time, 11 time or 7 time, and motor Okay. spin down. It's normally head damage. Okay. And if it is not spin down, it continues rotate, maybe sometime firmware problems or some other problems are there. That you have to identify. Excuse me, sir. Yeah, tell me. हेलो, हाँ बोलो। सर मेरे पास एक हार्ड डिस्क आया हुआ है जिसमें क्या है कि डिटेक्ट अवश्य करता है, लेकिन उसको क्या है कि आप डिवाइस मैनेजर में शो नहीं करता, लेकिन वो बूट सेक्टर्स में पहला जो रहता है वहां पर रीडिंग कर रहा है, लेकिन डिवाइस मैनेजर में नहीं शो कर रहा है, और नाइट टक टक का आवाज आ रहा है, रोटेट हो रहा है, लेकिन उसमें से कोई सेंस नहीं कर पा रहा है। देखो ये कुछ एरर आएगी आपको, ये देखो
IO एरर, नॉट इनिशियलाइज, या डिवाइस मैनेजर में ऐसा कुछ डिटेक्ट करेगा सीगेट में, पतली छोटी वाली नहीं सर, ये इस टाइप का कोई वो नहीं आ रहा, मैसेज ही नहीं आ रहा है। डिवाइस मैनेजर में आपका ये पूरा जो दिखाना चाहिए अपना डाटा का वो नंबर कुछ लिखा वही मैं बता रहा हूँ, ये क्यों नहीं आ रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स इसकी वजह से, फर्मवेयर इश्यू होते हैं। खाली टिक टिक आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर पावर देने के बाद टिक की आवाज कभी आ जाती है, कभी नहीं आ पाती है, यानी शुरुआत में कभी आती है लेकिन उसको फिर से निकाल कर फिर से लगाओगे तो आवाज गायब हो जाता है। हाँ, तो मोटर डाउन नहीं होनी चाहिए। वो मैं सिम्टम्स बताता हूँ, पहले ये समझ लो, फिर अपने डिस्कस करेंगे। जी सर। ओके ओके, यस। तो ये सब प्रॉब्लम्स आएगी। ये सब ज्यादातर रिलेटेड क्या है, हमारा फर्मवेयर इश्यूज होंगे। ओके, लेकिन अगर आपकी मोटर, अगर हार्ड डिस्क को पावर देने के बाद 2 टाइम या 5 टाइम या 7 टाइम या 11 टाइम टिक 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 ऐसा आवाज आके मोटर बंद हो जाती है, वो ज्यादातर सिम्टम्स हमारे हेड डैमेज का है, वो फिजिकल में आएगा। वो कंडीशन क्या है, फिजिकल है। लेकिन हम पावर देते हैं, पावर देने के बाद मोटर घूमती है, हेड भी घूमता है, लेकिन डिटेक्शन में नहीं आती है। वो ज्यादातर फर्मवेयर इश्यूज से सॉल्व हो सकता है। इस फर्मवेयर को रिपेयर करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। कौन से टूल्स है वो मैं बताता हूं आपको। आपके बजट के हिसाब से आप टूल्स लो। जैसे अभी आपको कार खरीदनी है तो सस्ती वाली भी ले सकते हैं, लेकिन सस्ती वाली में AC नहीं आएगा, वो नहीं होगा। और जितना महंगा लेंगे उसमें फंक्शन ज्यादा आएंगे। तो जितना बजट वाला टूल लेंगे उसका काम का रेशियो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अभी बजट नहीं है तो छोटे टूल से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे मीडियम में जाओ, फिर हायर में जाओ, इस तरह जा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एक्सक्यूज मी सर, या ये MRT पे ये 3.86 GB का सॉल्यूशन है? मैं वही बोल रहा हूँ, MRT में 3.86 अगर फिजिकल डैमेज है तो फिर फिजिकल में जाएगा। इफ देयर इज नो फिजिकल डैमेज देन वी कैन ट्राई विद द फर्मवेयर रिपेयर टूल्स। वीक हेड में भी ये 3.86 दिखाते हैं? हाँ, वीक हेड होगा या पर्टिकुलर वन हेड वीक होगा, वो सिम्टम्स है इसका। ठीक, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो नाउ सम अनदर प्रॉब्लम्स भी आएगी। ये तो नॉर्मल यूजर्स कैन सी दिस प्रॉब्लम्स, बट व्हेन वी कनेक्ट इन एन MRT और एनी फर्मवेयर रिपेयर टूल्स, इट विल गिव मी LED एरर। जो भी फर्मवेयर रिपेयर करता है उनके लिए they are using this error, LED error, CC, SIM error, error 50, port lock, all transaction issues. These are the problem coming in the terminal. Now what is a terminal? This is our terminal. See, you can see here the terminal. This is your terminal and this is your lock. So when we go in the repairing tools, there you can find the terminal. तो अगर टर्मिनल में जाएंगे तो ये सब एरर्स आएगी। सेकंड ऑप्शन, डाटा एक्सप्लोरर टू कॉपी। MRT और फर्मवेयर रिपेयर क्या करते हैं, डिस्क टू डिस्क इमेज बनाते हैं। अगर आप MRT ले रहे हैं, DFL ले रहे हैं और PC3000 एनी टूल ले रहे हैं, उसमें ये ऑप्शन आता है डाटा एक्सप्लोरर। लेकिन अगर आप सिर्फ वो लेते हैं, स्पार्क, डिस्पार्क, ये सब टूल ले रहे हैं, वो फर्मवेयर रिपेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ डिस्क टू डिस्क इमेज बनाने में चलेगी। तो ये डाटा एक्सप्लोरर है जिसमें डिस्क टू डिस्क इमेज बनाओ। अच्छा, 4 हेड है, उसमें से 2 हेड अच्छे हैं तो 2 हेड का डाटा निकालना हो तो इसमें कर सकते हैं। जो बैड सेक्टर है उसको स्किप करना हो, अच्छे हेड का इमेज बनाना हो, स्किप पार्टिकुलर, ये सब काम हम डाटा एक्सप्लोरर में कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 काम हम MRT में कर सकते हैं। अब सीगेट में अंदर फर्मवेयर में होता क्या क्या है, तो कि एक रोम फाइल होती है, एक रोम फाइल होती है, सिंगल फाइल रोम। दूसरी लोडर फाइल है, मॉड्यूल डायरेक्टरी है, CP डायरेक्टरी है, सिस्टम फाइल है, ये सब फाइल्स होती है इसके अंदर। अगर एक फाइल जहां स्टोर है वहां पर बैड सेक्टर होगा तो हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्शन में से हट जाएगी। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। जिसने ऑनलाइन WD क्लास करा था लास्ट टाइम, उनके लिए ये समझना आसान है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन करा था WD कैसा काम करता है, रोम के मॉड्यूल क्या है, हेड का मॉड्यूल कौन सा है, हार्ड डिस्क को डिटेक्शन में लाने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, वो सब इसमें हमको समझाना होता है। तो इसमें भी कुछ मॉड्यूल्स है, वो सब हम देखेंगे। सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आएगी, मॉड्यूल में। ट्रांसलेटर टेबल का, सीगेट में सबसे ज्यादा ट्रांसलेटर टेबल आता है। ट्रांसलेटर टेबल क्या है, देखिए हमारा एक प्लेटर है,
और उसमें ऐसे ट्रैक्स है, अलग अलग ट्रैक्स है, ठीक है, सबका अपना अपना एक एड्रेस है। अगर ये एड्रेस के लिए एक टेबल होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर टेबल, और उसमें मैंने जो बताया था आपको CHS और LBA कैलकुलेशन, अगर ये टेबल खराब हो गया तो मेरा कोई भी डाटा एक्सेस नहीं होगा, कोई भी डाटा एक्सेस नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो ज्यादातर सीगेट में क्या प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसलेटर इश्यूज आएंगे। उसको कैसा सॉल्व करना वो हम बताएंगे क्लास में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग टूल आते हैं, लो रेंज टूल और हाई एंड टूल। लो रेंज टूल में क्या हो गए 40-50% या लेटेस्ट हार्ड डिस्क को छोड़ के थोड़ा नॉर्मल 1 TB 2 TB तक आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हाइपर टर्मिनल से भी आप कमांड दे के रिपेयर कर सकते हैं। कुछ F3 टूल है, CDU है, और ये हमारे को सीगेट में यहाँ पर 4 वायर आते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल। और हमारे जो सीगेट के कमांड है वो टर्मिनल से चलेंगे, RX TX और ग्राउंड। और कुछ कमांड हमारे साटा पोर्ट से भी लगेंगे, और कुछ हमको पावर देना पड़ेगा, तो पावर और टर्मिनल लगाना। नॉर्मल टूल आते हैं, जैसे ये F3 टूल है हमारा, ये F3 का थोड़ा और एडवांस टूल है, और ये हमारा सीगेट का टूल है, अरे MRT का टूल है। तो ये 3 अलग अलग टूल है। ये 2 सस्ते आते हैं, हम लोग हमारी क्लास में हम ये भी देते हैं, और ये डोंगल भी देंगे, जिससे आप बेसिक रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये टूल थोड़ा कॉस्टली आता है, MRT या PC3000 या DFL, वो आप परचेस करना हो तो बाद में परचेस कर सकते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद, या काम अच्छा है तो ये भी आप ले सकते हैं। यू कैन बाई दिस टूल MRT ऑल्सो, you can buy F3, this is we will give you free with the course these tools। तो ये लो रेंज है। लो रेंज मतलब हमारी कोर्स में we will give you these tools। CDU is some costly tools, at the MRT, DFL और PC3000 कोई any tools you can repair। Now these are the low range tools, and high end tools we required for the high end machine, high end hard disk like DM। आपने ऊपर लिखा होगा हाँ, ST5000 500 DM00 like that, VM, LM, these are the new series hard disk। DM, VM, LM, ये हार्ड डिस्क क्या है, नई सीरीज की हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क में क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क लॉक आती है। कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी ऐड कर दी। क्या कर दी, पहले हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क को यूजर डाटा एक्सेस से या टर्मिनल से डायरेक्ट एक्सेस करते थे, बराबर, कोई सिक्योरिटी लॉक नहीं आता था, और डायरेक्ट हम फर्मवेयर को रिपेयर करके हार्ड डिस्क को रिपेयर कर देते थे। लेकिन अभी जो नई हार्ड डिस्क आई जैसे LM, VM, DM, वो लॉक आती थी। लॉक में क्या करा उन्होंने, उसमें सिक्योरिटी कोड डाल दिया, मतलब रोम में लॉक डाल दिया कि कोई भी नॉर्मल यूजर इसको यूज नहीं कर सके। दे कैन नॉट यूज दिस Seagate लॉक हार्ड डिस्क। तो दिस इज अ Seagate लॉक हार्ड डिस्क। टू रन दिस लॉक हार्ड डिस्क वी हैव टू अनलॉक द रोम, मेक अ पैच ऑन द रोम, देन वी कैन यूज इट। तो ये लॉक वाली हार्ड डिस्क है, ये अनलॉक हार्ड डिस्क है। तो ओल्ड हार्ड डिस्क यू कैन डू विद दिस नॉर्मल टूल, बट द लॉक हार्ड डिस्क वी रिक्वायर्ड सम हाई एंड रेंज टूल्स। तो ये लॉक और अनलॉक ये 2 प्रोसीजर है। तो लॉक हार्ड डिस्क एंड अनलॉक हार्ड डिस्क, ये अनलॉक है, ये लॉक है। इसी तरह WD में भी एक लॉक हार्ड डिस्क आने लगी, अभी नई हार्ड डिस्क आपको पता होगी, WD, चार्जर, पाल्मर, स्पाईग्लास फैमिलीज में क्या है, लॉक है। अगर आपने गलती से उसको फॉर्मेट कर दिया तो डाटा नहीं आएगा, आप 5-10 हजार भी खर्चा करो, पूरा डाटा नहीं आएगा, पार्शियल आएगा या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अभी जितने भी वीडियो एडिटर है वो वहीं पर फंसे हुए हैं, सबका फॉर्मेटेड डाटा निकालना होता है, 5-10 हजार चार्ज करो तो भी 100% नहीं आता, कुछ मिसिंग होता ही है उसमें। तो को रिमेंबर, आप पहले याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दैट डोंट फॉर्मेट द WD USB न्यू हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप ऑल्सो एंड कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जो कि वो नई टेक्नोलॉजी क्या है, SMR ड्राइव्स। SMR ड्राइव्स को कभी भी WD में फॉर्मेट मत करना है, क्योंकि वहां पर ट्रांसलेटर 2 यूज होता है। अगर आपने विंडोज में जाके फॉर्मेट कर लिया और फॉर्मेट करने के बाद आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर रन करेंगे, जो भी आप यूज करते हैं RStudio या कुछ भी, तो आपको कुछ डाटा नहीं दिखाएगा। उसके लिए MRT चाहिएगा, MRT से भी पार्शियल एक्सेस आएगा, पूरा डाटा नहीं आएगा। अनलॉक PCB लगाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अभी नई नई हार्ड डिस्क में बहुत फर्मवेयर रिलेटेड इश्यूज है। उसको आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप उसको करेंगे तो आप उसको अर्न कर पाएंगे। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। WD में भी लॉक आ गया, Seagate के लॉक देख के WD ने भी लॉक डाल दिया, उसने तो CPU में लॉक डाल दिया, उसके लिए हमको अक्की PCB बदलनी पड़ती है।
6000 की पीसीबी आती है, वो अनलॉक पीसीबी लगा के फिर डाटा निकालना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, जितना डीप में जाएंगे तभी आपको इनकम अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है। तो हमारे को नॉर्मली क्या होता है, मेनी यूजर्स बाय टूल्स लाइक एमआरटी। कितने यूजर्स अभी ये क्लास में भी होंगे उनके पास एमआरटी है या पीसी 3000 है या डीएफएल है या सीडीयू है या डीडी 3000 है, ऐसे कोई भी टूल है, बट उनको कैसा रिकवरी करना, कैसा रिपेयर करना, कमांड कैसा रन करना वो पता नहीं है, फुल्ली पता नहीं होता कितने यूजर्स। हाँ, जो एक्सपर्ट है उनको पता है, जो काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन जिसने अभी अभी टूल खरीदा उनको नॉलेज बराबर नहीं होता, वो खाली नॉर्मली 20-30-40% काम करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस बहुत अटवाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस को सेल्फ इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको ये ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई भी ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। तो यहाँ पर हम आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए एमआरटी टूल के बारे में बताएंगे। और अगर आपको एमआरटी टूल, इफ यू नो एमआरटी टूल देन यू कैन यूज एनी टूल, सेम प्रोसेस, सेम थिंग। So if you understand MRT tool also, then only you can do any other task. So before this course, you users should have a knowledge of computer. हाँ, ये जो भी कोर्स करेगा उसके लिए have to a knowledge of computer hardware and he must have a knowledge of logical data recovery, software based recovery he can understand. Then only he can do this course. This course is designed step by step course explaining all the concept in depth. Our course is deeply binary, hexa, how data store, how data delete, what happen, like that. So it will be lengthy class, but you will be self-dependent after this course. Okay, next. All the training course is a concept level. This training is a concept level. User have to do the practice and experience before doing the work on customer. जो भी कोर्स करते हैं, डॉक्टर भी बनता है तो डायरेक्ट पेशेंट लेकर नहीं बैठ जाता है, उसको पहले वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जो भी आप ट्रेनिंग लेंगे वो कॉन्सेप्ट होता है, आपको थोड़ी रफ हार्ड डिस्क की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर कस्टमर के हार्ड डिस्क पे काम करना होता है। डायरेक्ट कस्टमर के हार्ड डिस्क पे नहीं करना पड़ता है। पहले 50-100 हार्ड डिस्क खरीदो, उसका फॉर्मवेयर बैकअप करो, वो समझो कस्टमर ने दी, उसको रिकवरी करो, ये सब प्रोसेस करने के बाद ही आप कस्टमर के हार्ड डिस्क पे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट, तो इन आवर ट्रेनिंग पहला हमारा मॉड्यूल बनाए, अलग अलग मॉड्यूल बनाए। वी हैव मेक अ डिफरेंट मॉड्यूल। हार्ड डिस्क बेसिक स्टोरेज, हार्ड डिस्क फर्मवेयर का बेसिक, हार्ड डिस्क टर्मिनल कमांड, अलग अलग कमांड्स आते हैं, जी लिस्ट देखना हो, पी लिस्ट देखना हो, स्मार्ट रिसेट करना हो, वो सब समझाएंगे। फिर फर्मवेयर रिपेयर टूल के मेनू ऑप्शन, स्मार्ट रिसेट, डाटा कॉपियर, रोम एडेप्टिव, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम 4 लेवल तक जाएंगे। वी विल गो अप टू 4 लेवल, up to here we will show. Level 5 you have to do the practice, then only you will be perfect. Working experience after goes you have to do at your place. आपकी जगह पे बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, या आप वर्कशॉप ट्रेनिंग ले लो तो भी थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है वो कॉन्सेप्ट क्लास है, इससे आपको एक स्टेप समझ में आएगा। यू कैन डू द स्टेप एंड यू कैन गो फर्दर। Now this is process. Next, we will teach up to level 4 and 5 you have to do yourself. Now I am showing my course content. क्या क्या पढ़ाएंगे हम पहले। तभी हमने जो बताया इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस, हाँ, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, आस्की, इसको डीप में समझाना है। कैसा ए लिखते हैं तो डाटा कैसा जाता है, स्टोर कैसा होता है, बाइनरी, ये सब हमारा पहला मॉड्यूल। ये भी हमने अभी जो बताया वो थोड़ा थोड़ा स्पीड में बताया वो, हाँ, ये पहला। अब ये जो टर्मिनल नीचे विंडो आता है, हर हार्ड डिस्क, एवरी हार्ड डिस्क हैज एन स्टेटस लाइट। जैसे ये मैंने एमआरटी चालू कर रहा हूँ, देखो एमआरटी के नीचे ये लाइट आ रही है, गौर से देखेंगे तो ये लाइट आ रही है, दिख रहा है, ये एमआरटी टूल है मेरा। और एमआरटी में ये नीचे यहाँ पर ये एमआरटी टूल है और यहाँ पर स्टेटस लाइट है, आफ्टर पावर ऑन, डीआरडी, डीबीएस, ये सब एरर कोड का इंडिकेशन होता है एमआरटी या कोई भी टूल में। ठीक है, मैं अभी वहां पर आता हूँ, मेरी स्लाइड्स पे आ रहा हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और स्लाइड्स पे आता हूँ। तो ये टूल्स जो होते हैं वो स्टेटस लाइट होती है, ये स्टेटस लाइट है। ठीक है, ये इंडिकेटर है कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आया, एरर आई है, हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये इंडिकेटर से हमको थोड़ा पता चलता है कि हार्ड डिस्क में ये प्रॉब्लम है, बैड सेक्टर से एरर है, इमेज है, ये सब हमको समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग ये कोर्स करने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, वो आपको क्लियर करना होगा। हाँ,
पावर एंड सीक्वेंस ऑफ हार्ड डिस्क, वेयर इज हार्ड डिस्क, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये वो सब क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, हार्ड डिस्क की फैमिलीज। WD हार्ड डिस्क, अरे सीगेट हार्ड डिस्क में डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज है। एक तो वेरी ओल्ड, एक मीडियम और एक थोड़ा लेटेस्ट, 3 फैमिलीज है। ये हमारा चार्ट है फैमिलीज के, हमने चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट को मैं ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ, 2 मिनट। देखो ये सब फैमिली, हार्ड डिस्क की फैमिली का चार्ट हमने बनाया हुआ है। देखो ये सब फैमिलीज है। ये अलग अलग हार्ड डिस्क को पहचानना, जैसे आपने आईफोन लेते हैं तो आईफोन, किटकैट, जेलीबीन ऐसा नाम था, इसी तरह हार्ड डिस्क का भी अपना नाम है। ठीक है, जैसे अभी नई हार्ड डिस्क में ये सब आ रही है, क्या आ रही है, चिपलाइट LM007, LM005, उसका मॉडल क्या होगा, ST1000, LM, LX, DX। ये सब हमने हमारा चार्ट बनाया, उसमें अलग अलग फैमिली होगी, उसका वर्जन होगा, उसको फैमिली क्या बोलते हैं, ये सब है। ये सब फर्मवेयर में थोड़ा नॉलेज होता है। आपने हार्ड डिस्क के ऊपर दिखा होगा मोमेंटम्स, बाराकूडा 7200.11, ये ओल्ड मॉडल में इस तरह लिखा होगा 7200.12 से बाराकूडा, मोमेंटम्स, ये हार्ड डिस्क की फैमिली। तो ये फैमिलीज अलग अलग आती है इसमें। नेक्स्ट, तो ये फैमिलीज हमारी अलग अलग फैमिलीज के नाम है हार्ड डिस्क के। तो इसमें सीगेट की PCB नंबर कौन सा मैच हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हार्ड डिस्क को 2 पिन को शॉर्ट करना पड़ते हैं ओल्ड मॉडल में, नए मॉडल में जरूरत नहीं है, ओल्ड मॉडल में शॉर्ट करनी पड़ती है। तो कौन सी पिन को शॉर्ट करना होता है, बाईपास करने के लिए। तो ये सब हमारा नॉर्मली सीगेट है। देखो बेसिक फैमिलीज, PCB नंबर, रोम में RAP, SAP, CAP क्या है, सीगेट के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या है जिसकी वजह से डिटेक्शन में नहीं आती है या डिटेक्शन में आके एरर दे रही है। हाँ, सिस्टम फाइल कौन सी इंपॉर्टेंट है, CP फाइल क्या है, सेक्टर्स क्या है, रोम मॉड्यूल कैसा है, टर्मिनल कमांड कौन से है, MRT टर्मिनल में व्हील स्मार्ट व्यू करना, क्लियर स्मार्ट, ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादातर हमारे सीगेट में, जोन डिसेबल करना, ये सब कमांड कैसा करना, MRT मेनू ऑप्शन, ये सब अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। तो ये हमारा सीगेट का नॉर्मली टॉपिक्स है। अब मैं MRT में जाता हूँ। तो MRT में मैंने ये सीगेट की एक हार्ड डिस्क खोली है, ठीक है, एक, और एट अ टाइम में 4 हार्ड डिस्क खोल सकता हूँ, 1 2 3 4, 4 को रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं पहले पे गया हूँ, तो पहले पे जा सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है ATS0, 0 पे आया, यहाँ पर टर्मिनल आया, तो टर्मिनल पे भी मैं जाके उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी टर्मिनल है वो टर्मिनल हम यूज कर सकते हैं। ये टर्मिनल है, देखो ये टर्मिनल विंडो है, यहाँ पर हम कमांड देते हैं, ये लॉग्स है, इसके मॉड्यूल कौन से फाइल है, क्या लोड करा, क्या नहीं करा, वो सब इसमें आएगा MRT। और इसके ऑप्शन देखते जाओ, हाँ, ट्रांसलेटर मॉड्यूल, वर्क विद डिफेक्ट लिस्ट, ऐड, रिमूव, व्यू, ये सब चीज एक के बाद एक समझना है रिपेयरिंग करने के लिए। स्लो फिक्स है, हाँ, रिसेट स्मार्ट करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है ये 1 क्लिक रिपेयर होता है। ये MRT में क्या होता है, जो भी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको 1 क्लिक रिपेयर करो, या बड़ा बड़ा है तो उसको अलग अलग करना पड़ता है। देखो टूल्स है, बैकअप ऑल मॉड्यूल्स है, मतलब हार्ड डिस्क का मॉड्यूल को बैकअप करना होता है, ये मॉड्यूल बैकअप करते हैं, तो ये यहाँ से पूरे मॉड्यूल को रीड करके बैकअप करेगा, ये सब इसका काम अलग अलग है। पासवर्ड है, सर्विस एरिया है, हार्ड डिस्क को रिपेयर करना हो तो रिपेयर कर सकते हैं, ये सब काम यहाँ पर एक 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 ऑप्शन बहुत सारे। MRT में हमको एक एक ऑप्शन को करके देखना है। हाँ, लॉजिकल स्कैन, हार्ड डिस्क का सरफेस स्कैन करके देखेंगे, सरफेस स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से देखेंगे। तो ये MRT मेनू ऑप्शंस आपको देखना है पूरा। ठीक है, बहुत सारी नोट्स भी है, हमारी बुक्स भी हैं, कुछ केस स्टडीज भी है कि ये प्रॉब्लम आया तो इसको ऐसा करना है, ये प्रॉब्लम आया तो ऐसा करना। ठीक है, तो ये हमारे सब प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। तो ये, इसको टर्मिनल कमांड बहुत सारे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, टर्मिनल कमांड है। ये टर्मिनल कमांड में हमारे को वी लिस्ट देखना है, पी लिस्ट देखना है, डिफेक्ट लिस्ट देखना है, वो सब हमारे ऑप्शन अलग अलग है यहाँ पर। तो सपोज यहाँ मैं बड़ा टर्मिनल बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा, फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, आपको जरा सामने से दिखेगा। तो देखो ये डिफेक्ट लिस्ट है। अब यहाँ मेरे बैट सेक्टर कितने हैं वो देखना, तो उसके लिए कमांड है, हाँ,
सब अलग अलग कमांड है। वीपी लिस्ट, जी लिस्ट, ये सब बैच सेक्टर इन्फॉर्मेशन, इतने सब बैच सेक्टर्स है, ये सब आपको समझना है। ये 2 TB के हार्ड डिस्क है, उसमें कितने बैच सेक्टर्स है वो सब काउंटिंग करके दिखाएगा आपको। ओके, ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको पूरा स्टेप समझ में आएगा। तो नॉर्मली इसको स्टेप बाय स्टेप ये है। दूसरा एक सॉफ्टवेयर आता है हमारा, ये है। ये छोटा सॉफ्टवेयर है, जिसके पास बजट नहीं है MRT का, वो छोटा मोटा रिपेयरिंग इसमें कर सकते हैं। इसमें भी देखो 100 जीलिस, प्लेयर जीलिस, 100 पीलिस, 4 टीलिस, ये सब नॉर्मली हमारे नॉर्मल रिपेयरिंग के टी। और ये नया मॉडल, ये जूना मॉडल, 2 मॉडल अलग अलग है। तो यहाँ पर भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा भी एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो ये सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल रिपेयरिंग वाले जो नॉर्मल काम करते हैं, वो ये नॉर्मल इकोनॉमी सॉफ्टवेयर जो हम लोग हमारा फ्री देंगे, वो ये सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास MRT है तो बहुत अच्छा है। तो ये MRT में हमको विंडोज में जाके हम डाटा कॉपियर में भी जा सकते हैं। देखो डाटा कॉपी है, इसी में अगर आपने SSD एक्टिवेट करा तो SSD भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर सर्वेलेंस है तो वीडियो रिकवरी के लिए भी अलग से है, मैक्स्टर है, फुजिसी है, हिटाची है, तोशिबा है। अभी हम सिर्फ इसमें जाएंगे, लेकिन WD है तो WD के भी ऑप्शन है, सैमसंग का है, तोशिबा, ये सबको रिपेयर करता है। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसको चलाते आना चाहिए। यू हैव टू नो हाउ टू रन दिस यूटिलिटीज। ओके, तो ये सब हमारे ऑप्शंस है। अब मैं नोट्स भी थोड़ा दिखा देता हूँ, हम लोग कैसे नोट्स दिखाते हैं। तो ये हमारे नोट्स के स्टेप्स है। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे नोट्स बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वो है। जिसने मेरे ऑनलाइन कोर्स लिए हैं उनको पता है मेरे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल कैसे होते हैं। ये देखो, ये टर्मिनल कमांड है सब अलग अलग। हाँ, QT, ये सब टर्मिनल कमांड के लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 7, ये सब अलग अलग कमांड्स चलते हैं। वो कमांड्स कौन से कमांड से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल L से क्या होता है, ये सब हमारी नोट्स में दिया हुआ है। तो ये सब कमांड हमको करके दिखाएंगे, फिर केस स्टडी करेंगे छिले कि क्या प्रॉब्लम आए तो कैसा करना, अगर बिजी एरर आती है तो क्या करना, वो सब स्टेप बाय स्टेप लाइव क्लास कल से जो चालू होगा उसमें ये सब स्टेप चलेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 5-6 दिन लगेंगे। इसके जो भी टोटली फ्रेशर स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी डायरेक्ट आ रहे हैं तो उनका एक अलग अमाउंट है, और जो ऑलरेडी एक्स स्टूडेंट्स है जो कर चुके हैं पहले, उनका एक अलग कंसेशन रेट है। तो जो भी अगर किसी को डिटेल है, किसी को कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, और यहाँ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं किसी को कुछ क्वेरीज है तो। लेकिन अभी नॉर्मली जिसको जो पर्सनली है, अगर किसी को ज्वाइंट होना है तो कल यही टाइम पे 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, और स्टेप बाय स्टेप टॉपिक क्लियर होंगे। हम लोग पहले छोटे टूल से बताएंगे, ये छोटा टूल बताएंगे टर्मिनल कमांड के लिए, और फिर हम लोग MRT पे जाएंगे। तो जिसको अगर छोटे टूल तक जाना है तो छोटे टूल तक जा सकते हैं, और बड़े टूल जिसको MRT तक जाना है और डीप में समझना है तो यहाँ तक भी आप कोर्स कर सकते हैं। और कोई पॉइंट रहेगा तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा, जिसमें हम अलग अलग हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं, कैसा इसको रिपेयर करना है। कुछ हम 2-3 केस स्टडी भी बताएंगे लाइव, LM रोशवुड का बताएंगे, और 2-3 और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको 2-4 अगर किसी का केस आया है बीच में तो हम रिकॉर्डिंग क्लास में ही बताएंगे, तो उससे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फोटो ले लो। तो ये सब हमारा अलग अलग है, ठीक है। तो अब किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सब लोग हैं, सबको ज्यादा क्वेरीज होगा, अभी जितना होगा उतना अपने डिस्कस करते हैं। किसी को और क्वेरीज है तो बताइए, नहीं तो ये फिर जो पर्सनल सब कर सकते हैं। बोलो। ये जो अभी आपने MRT टूल के अलावा जो सस्ते वाले टूल बताए हैं, हाँ, ये कौन से टूल्स हैं? ये F3 टूल है, बेसिक कमांड के अलग अलग है। तो वो नहीं तो टूल आपको देंगे, उसके साथ एक हाँ, डोंगल देंगे और केबल देंगे। डोंगल जरा अच्छा यूज करेंगे तो टर्मिनल कमांड अच्छे से चलेंगे। अब USB मैं वाला डोंगल डोंगल जो बता होता देता हूँ, है। 2 मिनट ठहरो, डोंगल बता देता हूँ। देखो, ये जो कमांड चलते हैं वो टर्मिनल कमांड से चलते हैं। इसके लिए ये टर्मिनल है, देखो ये MRT के साथ टर्मिनल अच्छा वाला आता है। अगर आप ये यूज कर सकते हैं तो ये यूज करो। ये पैसे वाला आता है, और हम जो नॉर्मल डोंगल देंगे वो नॉर्मल डोंगल है। आप देख सकते हैं ना डोंगल, ये टर्मिनल लगाया, देखो सीगेट में मैंने ये टर्मिनल लगाया, दिख रहा है ये सब ऐसे टर्मिनल आते हैं अलग अलग, छोटा नहीं, अब डोंगल। जो अभी आप कह रहे हैं अच्छे डोंगल टर्मिनल्स, ये क्या कॉस्टिंग होती होगी इनकी? ये कुछ 3,000-4,000 के जैसे आते हैं, ये सिंगल पोर्ट वाले, ये ड्यूल पोर्ट, ये तो MRT के साथ ही आता है।
लेकिन अलग से महंगा वाला ले सकते हैं। महंगा अगर वाला आपको 3-4 फ्री हजार का वाला आता है। चाहिए तो फ्री वाला ऐसा आता है, लेकिन इसमें कभी कभी एरर आती है। अच्छा, नहीं जो आप महंगा वाला बता रहे हैं वो 3-4 हजार का आता है, आप बता रहे हैं। हाँ, 3,500 का सिंगल यूएसबी पोर्ट, सिंगल पोर्ट केबल हाँ, कनेक्टर के साथ, और उसके साथ टर्मिनल ले लेने का। अच्छा और ये और लेंगे ये, तो ये हमारी क्लास में आपको फ्री मिलेगा। अच्छा जो सस्ता वाला है। हाँ, उसमें थोड़ा लंबा वायर होता है ना, तो कभी कभी एरर देता है, बाकी हम्म। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं तो 3-4 हजार वाला लेने में तो ये नॉर्मली सबके हाँ, बजट वो में आ जाता है। टर्मिनल कमांड तो में नॉर्मली इस 50-40% काम हो जाता है उसमें। अच्छा, और इसका अलग से सॉफ्टवेयर होता है या कुछ बस इसकी के थ्रू काम हो नहीं, ये जाता है? F3 में चल जाएगा, उसकी सेटिंग आती है, वो सेटिंग कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके उसकी स्पीड, बस स्पीड, वो सब कर सकते हैं, या हाइपर टर्मिनल से भी आप कमांड दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और है, ये जो फर्मवेयर के सॉफ्टवेयर हैं हम्म। जो इससे हम वो करें, ये कहाँ से मिलेगा? क्या ये एमआरटी टूल में इनबिल्ट होता है या नहीं, फिर? ये आपको है ना कलेक्शन लेना पड़ता है। अगर हमारे पास से एमआरटी लेते हैं तो हम उसके साथ अभी एमआरटी के साथ फर्मवेयर कलेक्शन देते हैं, तो वो हम्म, आप हमारे पास से खरीद सकते हैं, या किसी और के पास कलेक्शन है तो वहां से ले सकते हैं, या आप कलेक्शन यहाँ कॉस्ट, से ले सकते हैं। कलेक्शन ये कॉस्ट पेड का क्या होगा? कलेक्शन होता है, ये आपका पेड होता है, harddisksurgery.com, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, यानी अगर हम आपसे लेते हैं तो उसका क्या पे करना होता है? अगर एमआरटी हमारे पास से लेते तो हम फ्री में देते हैं। नहीं इन केस वही अगर मैं बताया ना। कुछ चाहिए तो अब वो कितना फॉर्मवेयर है उसके हिसाब से है, वो बता दूंगा, तो हम्म, कितना क्या क्या ले रहे हैं उसके हिसाब से। तो देखो अच्छा यहाँ और पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फॉर्मवेयर चाहिए, आप सीगेट में जाओ, ये हाँ पेड है, ये अलग अलग केस, अलग अलग फैमिली है। हम्म हाँ, रोसवुड हम्म A5 में चाहिए तो रोसवुड A5 में क्लिक करा, वहां पर हम्म नीचे गए, वी कैन गो डाउन। हाँ, हम्म, वॉट एवर फॉर्मवेयर यू वॉन्ट यू कैन परचेज फ्रॉम हियर, इट इज $1 अच्छा पर फाइल। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो यू कैन फाइंड हियर, हम्म इसको गूगल में सर्च कर लीजिए। हम्म, हाँ, और गूगल में जहाँ फ्री मिल रहा है वहां से भी आप ले सकते हैं। अच्छा वहाँ से पे। ये अच्छा एक लास्ट चीज स्टेज और है, दिस इज मैं लास्ट समझ। स्टेज, यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर वेयर हम्म इट इज गेटिंग अ फ्री, HDDDonor.in, फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से आपको फ्री में भी मिल जाएगा, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल के पास है तो यू कैन हम्म, बाय फ्रॉम फ्रेंड सर्कल ऑल्सो। अच्छा एक चीज और आपने बताया, अनलॉक पीसीबी। हाँ, अनलॉक पीसीबी ये क्या हर हार्ड डिस्क के लिए मिल जाती है या कॉमन होती है, या हर हार्ड डिस्क के लिए अलग अलग होती देखो मैं बताता हूँ आपको, आपको फैमिली नहीं पता है है? तो मेरा अंदर चार्ट था ना अनलॉक पीसीबी का, 2 मिनट मैं आपको बताता हूँ। अनलॉक पीसीबी आपके क्वेश्चन पूछा तो मैं एक बार बता देता हूँ। हम्म हम्म, ये WD का सिलेबस है, हम्म। तो WD में अनलॉक पीसीबी की जरूरत पड़ती है, इसमें अनलॉक पीसीबी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। नहीं जैसे आपने कहा पुराने वाले में अनलॉक से भी काम चल जाता है एनआई में। नहीं, पुराने मतलब WD में जो आती है वो अनलॉक पीसीबी की जरूरत पड़ती है। हम्म इसमें 5-6 हार्ड डिस्क आती है। हम्म ओके। हम्म। तो ये कॉमन होती है ना, ये किसी में हाँ भी लग जाएगी? हाँ, वो नहीं कॉमन नहीं होती है, सबकी साइज के हिसाब से होती है। नहीं वो डिजाइन सबका अलग होता है, हाँ तो मतलब हर डिजाइन का अलग अलग हो, या पीसीबी नंबर से लेना पड़ेगा? हाँ, देखो एक आती है पीसीबी नंबर 800067, हम्म 810063, हम्म। इसकी अनलॉक पीसीबी आती है 65। दूसरी आती कितने? है पाल्मर, वो चार्जर फैमिली होती है। दूसरी आती है पाल्मर फैमिली, उसकी 800069, 8000, इसकी सीरीज चलती है 66। फिर हम्म स्पाई ग्लास फैमिली आती है, उसकी सीरीज पीसीबी नंबर आती है यूएसबी 800041, हम्म उसको लगानी पड़ती है 800022। हम्म और जो भी यूएसबी आती है वो लॉक आती थी, और साटा अनलॉक पीसीबी लेनी पड़ती है। हम्म तो वो क्या होता है, हम फर्मवेयर को एक्सेस करके रिपेयर कर सकते हैं, WD की बात है। हम्म तो WD रिपेयर हो जाती है, उसके बाद यूएसबी में जाके हम करते हैं, लेकिन अभी उसमें भी एक एनक्रिप्शन आने लगा, यूएसबी एनक्रिप्शन। हम्म। सब में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डालते जा रहे थे, तो अभी वो चार्ज कोई 30,000, 20,000, 15,000, 10,000 ऐसे कास्ट आते हैं इसमें काम करने के। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरीज? सर ये अनलॉक पीसीबी को ओरिजिनल राम राइट करना पड़ता? हाँ, वो रोम राइट करना पड़ता है प्रोब से। ठीक है। सो इसमें अनलॉक पीसीबी में डमी राम होता? नहीं, उनका वही खुद का प्रोग्राम? एक फॉर्मवेयर होता है, अगर वो फॉर्मवेयर चल गया तो ठीक है ऐसा, नहीं तो आपको ज्यादातर रोम राइट से पहले लगा के देख लेना, अगर एक्सेस हो गया तो ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 4 जात का रोम है, अब उसमें एक रोम है, अगर आपकी हार्ड डिस्क वही सेम रोम है तो चल जाएगा। So first of all we have हाँ, चेक करके देख लो, या वो राम भी बैकअप कर लेना।
वो अनलॉक्ड पीसीबी का। हाँ, पहले रख देना है, फिर करना है आपको। ठीक है सर। और कोई को कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो जिसको एनरोल करना है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो पर्सनली, और जिसको ज्वाइंट होना है वो कल 9:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। 1 to 1.5 आवर्स का क्लास रहेगा सीगेट का। तो सीगेट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमारे बहुत सारे केस स्टडी भी बनाए हैं, और हमारा डाटा रिकवरी का है। आपने जिसने नहीं देखा वो लैब दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, ये एक MRT कार्ड ऐसा आता है। ओके, इसके अंदर 4 आर्टिस्ट लगी है पीछे से, और यहाँ पर टास्क चालू है। एक दिख रहा है आपको? एक टास्क, ये एक सिस्टम है, 1 सिस्टम। सेकंड, दिस इज सेकंड सिस्टम। देयर 2-3 more systems are there, you can see all are working. We have 3 MRT in our lab. Okay, तो ये MRT में हम डाटा रिकवरी करते हैं। DFL यूज कर सकते हैं, we can use DSFL also or PC3000 depend on your budget. Here is your physical work, head replacement. Okay, head replacement ये सब है। And then there is different donors, too many donors, one room with donors are this. So whenever we require the PCB swap, we can do these things also. एक चीज और पूछना था, ये जो हेलो, हाँ बोलो। जो हेड रिप्लेसमेंट वाली बात कर रहे हैं आप, तो हेड रिप्लेसमेंट नॉर्मली किया जा सकता है, मतलब, या उसके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केस होता है? नेम वही चीज है, आपके पास टूल्स अच्छे होंगे तो काम अच्छा होगा, टूल्स अच्छे नहीं होंगे तो केस बिगड़ेंगे ज्यादा। अच्छा, इट डिपेंड ऑन दैट। टूल्स पे डिपेंड करता है कि हेड कैसे वो चीज है। हाँ, जितने अच्छे टूल होंगे, जैसे अभी लो बजट का लेवल 1 है तो उसके थोड़ा नॉर्मल काम होगा, लेवल 2 में थोड़ा और मॉडल ऐड होंगे, लेवल 3 में एपेक्स में जाएंगे, या HDD सर्जरी सबसे अच्छा HDD सर्जरी। लेकिन सबका बजट उतना सब नहीं है कि HDD सर्जरी के टूल ले, उसकी ये क्या सब अभी स्टार्टर है। उसकी क्या कॉस्टिंग आती होगी? वो एक टूल के $250 आते हैं, एक मॉडल के। अच्छा, साइट पे जाएंगे तो मलाई, हाँ, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट आती है। जितने भी बड़े बड़े डाटा रिकवरी पर्सन है उनके पास वो टूल होते हैं, और उनका पूरा यूनिट का सेट खाली हेड रिप्लेसमेंट का 4 लाख आता है। नहीं तो उस हिसाब से उनके पास हार्ड डिस्क आ जाता है। वो उनका काम होता है, जिसका जैसा लेवल है वो हिसाब से कर सकते हैं। अब हर आदमी BMW नहीं लेगा। वही चीज है। हाँ, तो बजट, ड्यू टू द बजट यू कैन टेक स्टेप बाय स्टेप, यू कैन गो अहेड। इफ यू हैव अ बजट देन यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको पहले एक्सपीरियंस कलेक्ट करना है। हाँ, कम से एक्सपीरियंस करने के बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद फिर धीरे धीरे री इन्वेस्ट करते जाइए। हमारे पास भी पहले क्लीन रूम नहीं था, टूल नहीं था, सब नहीं था, फिर धीरे धीरे गए। स्टेप बाय स्टेप हम कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कंपनी खोलनी है, बजट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है और एक्सपीरियंस है, देन यू कैन गो टू हाई एंड मॉडल, नो प्रॉब्लम। नहीं मेरे पास अगर आप MRT के बदले PC3000 पे जाते हैं, तब PC3000 का अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाख रुपीस चार्ज दिया, अब उसका ईयरली 1 लाख के ऊपर है। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड ये कहते हैं उसको सपोर्ट चार्ज। तो सबके बस की बात नहीं होती है। हाँ, अभी लो बजट में जाना है तो MRT भी ले सकते हैं। उसका लो बजट क्या है, डाउन पेमेंट 40,000 दे दो और एवरी मंथ आपको $190 पे करके रिचार्ज करते रहो। आपका अगर कुछ सडनली आपका काम नहीं चला आगे, आप इसको स्टॉप भी करेंगे तो लॉस कम ही रहेगा ना। अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पे करके आप यू कैन गो अहेड। तो दीज आर द बेसिक टूल्स। नहीं, लेकिन उससे भी पहले नहीं जाना हो तो पहले छोटे छोटे टूल्स है, ये टूल से आप काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हमारे टूल्स है अलग अलग, तो इससे आप डाटा रिकवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल 1 मिनट। सर, ये DFL का क्या प्राइस आता है? DFL का पर आवर वाला भी है, वो भी है। डायरेक्ट 1 लाख समथिंग पे करो और पर आवर्स के हिसाब से उसका काउंटिंग होता है। पर आवर में थोड़ा बजट ज्यादा जाता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी अक्की रात हार्ड डिस्क चालू रख के जाते हैं। 2 दिन 3 दिन 5 दिन भी चलता है, तो थोड़ा बजट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। MRT में 2 टाइप के डिवाइस आते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन मीन्स इंस्टॉलमेंट बेस और ऑफलाइन मीन्स यू कैन गो थ्रू द इंस्टॉलमेंट बेस।
there is two type of day. Okay, Naresh sir. So there is MRT two type of day. Online means you can go on installment and you required internet to start, just to start, and you can pay the installment. If 30 days clear, then again you pay installment, 30 days extend. Up to 23, you have to pay $190. 23 installment, you can pay $190. And down payment, $430. And one time payment, it will be something $4,300, $4,200, like that. So these are the price. Normally Seagate है, इसी तरह WD है, Fujitsu है. WD Seagate ज्यादा काम करता है. MRT में Seagate सबसे ऊंचा है, अच्छा चलेगा, और WD भी काम करेगा. तो ये क्लास हमारी कल से स्टार्ट होगी. ठीक है, कोई को और क्वेरीज है? सर ये फ्यूजिट्सु हिटाची को क्या उतना इम्पोर्टेंस बहुत नहीं है? कम होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, जीलिस क्लियर कर सकते हैं या उसको जो बेसिक रिपेयर कर सकते हैं. मेन प्रॉब्लम आती है WD Seagate में. ओके सर. ओके, एवरीबॉडी Okay, ओके? Thank you for watching the demo class. If you have any queries, you can send me the personally, no problem. And if anyone want to join it, he can join it. We will give you online videos first. You have to watch videos before attending the live class, because after video you can ask me more queries. You will understand half. For chapter wise, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, step by step class are there. You can understand step by step, then you can go ahead. Excuse me sir. Yeah, tell me. मैंने कोविड के समय में ये अपना इसका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग लिया था, कौन सा है, किसी का ट्रेनिंग लिया था. हेलो, हाँ आपने लिया था सर. इसके ये डाटा एम्पायर का ट्रेनिंग लिया था, उसमें क्या सिर्फ वीडियोस यानी डाटा एम्पायर और आपका जो संस्था है दोनों एक ही है क्या? नहीं, डाटा एम्पायर अलग है, वो भी हमारे है एक्स. हाँ, डाटा एम्पायर का अलग है, हमारे कुछ अलग क्लास है. उनका अलग से क्लासेस है. हाँ, उनका तो बेसिक है, मतलब उनका एक अलग है, वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनका एक अलग है, वो बाद में स्टार्ट हुआ था. हमारा ओल्डर है, उनसे पहले से हमारा स्टार्ट है. इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट थी, हेड DRC, वो टाइम से हमने चलाया था. और हमारा सबसे पहले इंस्टीट्यूट, मैंने चाइना से ट्रेनिंग भी ली थी. यू कैन सी द चाइना. हमारा MRT में हमारा ट्रेनिंग भी था, MRT में जाके ट्रेनिंग भी लिया है, और वहाँ पर हमारे दोनों सर के पास पढ़े भी हैं. MRT से मैंने ट्रेनिंग लिया है, और यहाँ पर उसके हम MRT के रीसेलर भी हैं. वी आर द रीसेलर्स ऑफ MRT ऑल्सो. आपका MRT के ऑनलाइन में भी आपका नाम भी है. We are the reseller. You can see on the website also. We are the reseller of MRT. We are providing the different training, and Delhi also, and Chennai also, Bangalore also. We are conduct too many classes also. Okay. तो डाटा एम्पायर का क्या है, नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप बेसिक है, लेकिन स्केड्यूल वाइज वो तो नहीं बोलता, लेकिन उनका एक अलग ही सिस्टम है, और हमारा एकदम डीप में स्टेप बाय स्टेप क्लास है. दोनों प्रोसेस अलग अलग है. आपका स्टार्टिंग ट्रेनिंग से वीडियोस में क्या है प्राइजेस? हाँ, अगर आपको सेल्फ स्टडी लेना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सेल्फ स्टडी वीडियोस ले लो, उसका एक अलग प्राइस है. और लाइव क्लास का अलग होता है. लाइव क्लास में हम लाइव डिस्कशन करेंगे, और हमें यहाँ पर MRT में एक एक हार्ड डिस्क लगा के पूरा कमांड करके दिखाऊंगा, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा. जैसे मैं यहाँ बताऊंगा कि मैंने ये सिलेक्ट करा, उसके बाद क्या करना है, तो क्या ऑटो डिटेक्ट करेंगे, ऑटो में कैसा पावर ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ लेक्चर लूंगा जी. और मैं आपको करके दिखाऊंगा. क्लियर जीलिस, क्लियर पीलिस, वो सब करके दिखाऊंगा, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. सिर्फ आप सीगेट का ही बताएंगे कि WD और ये? नहीं, अभी ये जो सेशन है वो सीगेट का है. सिर्फ सीगेट में ही 5-6 दिन है, उसके बाद फिर WD कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी स्टेप बाय स्टेप है. हाँ, नहीं ज्वाइंट होंगे तो सर आपका WD भी इसी में इंक्लूड होगा कि अलग? नहीं, वो अलग कोर्स है, तीनों का अलग अलग सिलेबस है. मैं आपको कोर्स कंटेंट भेजता हूँ, आप उसको स्टडी कर लीजिए. जी, भेज दीजिए. और इसका पूरा चार्जेस मेरे को बताएंगे? हाँ, वो मैं आपको भेजता हूँ, आप इसको देख लीजिए. तो ये जो भी मैं यहाँ करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप एक एक मेनू के साथ मैं लेक्चर लूंगा,
कि क्या करना है, ट्रांसलेटर क्या हुआ, डिफेक्ट लिस्ट क्या है, डिफेक्ट लिस्ट को कैसे ऐड करना, फिर ये बैकअप रिसोर्सेज में रोम को बैकअप करना हो तो कैसा करके दिखाऊंगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कोई 1-2 हार्ड डिस्क में। फिर डाटा एक्सट्रैक्टर करना है तो डाटा एक्सट्रैक्टर में जैसे यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर डाटा एक्सप्लोरर रन करा, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप क्लास चलेगी। जब भी यहाँ पर आएंगे तो न्यू टास्क आएगा या ओपन टास्क आएगा या एग्जिट आएगा, फिर उसको कैसा करेंगे तो न्यू टास्क करेंगे, न्यू टास्क में यहाँ आप मैनुअल डालो, ऐसा स्टेप बाय स्टेप समझाना है। MRT कैसा यूज करना वो सब आएगा। सपोज यहाँ नाम दे दिया, फिर मैं नेक्स्ट करा, फिर कौन सा पोर्ट है हमारा वो पोर्ट सिलेक्ट करना है, तो ATS 0 है तो नेक्स्ट 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 करके जाके यहाँ पर डाटा ओपन कर सकते हैं। वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा स्लोली। ये तो डेमो क्लास है तो मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन एक एक करके MRT यूटिलिटी के साथ चयन करना वो स्टेप कोर्स कंटेंट है। तो यहाँ तक हमारा डेमो है। किसी को कुछ क्वेरीज है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डेमो वीडियोस। अगर किसी को क्वेरीज है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम अवेलेबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।